airport right next to it, which is of civil aviation, and we have established a camp as well as civilian airlift operations are being conducted from that place, sir. With a single heli, we have safely evacuated 350 people in the past 3 days, sir. And we have. Why single heli? Many helis, or 5 helis? It is supported by the army helis, and they have deployed 5-6 helis. Who presentations are separate. Taken, sir. As of now, the damages, sir, we have 46 bridges which have been affected. The Mata subdivision and Bahrain subdivision has been worsted since it is famous for the hospitality industry. So a lot of houses as well as, sir, hotels. In fact, the whole Bahrain bazaar has been inundated, and it is a big challenge to revive it at the earliest. Mata is, sir, adversely affected because it has remote and high altitude valleys. Kabul is comparatively safe, sir, and Barikot is safer. Likewise, sir, Babuzai is headquarters subdivision. It has minimal damage. It was inundated in the first flood session, but alhamdulillah, we have rescued everyone. Only one casualty of a minor child who was an Afghan. We have moved a case that even an Afghan should be compensated and she should be given compensation. Sir, in total we have 22 injured dead bodies, and we have already moved their case, and inshallah by tomorrow they will be the financial compensation would be awarded to them, sir. Sir, the main challenge is, sir, immediate challenges are these, sir. We need Mi-17 helicopters and provision of jet fuel, since we have already visited the area, sir. Heavy machinery already present in the area is deficient on fuel supply. We need to provide jet fuel, diesels to them. If we could use if one jet can be provided and we can provide diesels, I am sure, sir, in the next 3 to 4 days we can create a 4x4 road or even a pedestrian track where people can walk out of it. The distance between Kalam and Bahrain is 35 kilometers. Already 8 kilometers out of that has been rehabilitated. If we can focus, once we are done with the rescue operation and focus on the road rehabilitation, we would be able to overcome this disaster. And steel bridges, Army has been gracious, and they have already committed to provide steel. आपको डीसी साहब ने बताया, सर, हमारा जो सवात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज है, सर, वो ज़्यादा हुआ है, और वो ज़्यादा जो है, सर, ये अपर सवात में कालाम, बहरीन और अब तो क्वाजा केला, क्योंकि सर यहाँ पे रिवर का जो स्पैन है वो नैरो है। तो जो चीज़ भी, सर, रिवर क्लीनिंग जितने स्ट्रक्चर्स थे वो उसको उसने किया है। जो, सर, फॉर्चुनेटली हमारा जो इसमें ह्यूमन लॉस है वो बड़ा कम है। वो टोटल, सर, हमारे 22 अभी तक जो डेथ्स हैं वो रिपोर्ट्स हुई हैं, और इसी तरह जो हाउसेज डैमेज हैं, सर, वो टोटल 165 हैं। जो कुछ यहाँ पे, सर, जो अंदर रोड हैं मटा में और बहरीन में, जो लोकल रोड्स हैं वो काफ़ी, सर, डैमेज हुए हैं, जिसमें 200 मीटर का 300 मीटर का पैच, लेकिन वो, सर, उस पर हमारा जो है वो CNW डिपार्टमेंट वो काम कर रहा है। हमारा, सर, जो मेन इशू है, जो हमारी नेशनल हाईवे है, सर, ये मंगोरा से ये इस तरफ दरिया के, सर, इस तरफ चलती है ईस्ट ऑफ द रिवर, और ये मदियन तक जाती है, और एक ये प्रोविंशियल हाईवे है, सर, जो मदियन तक जाती है, और मदियन से फिर एक ही सड़क हो जाती है, सर, जो कलाम में मदियन से आगे ये वेस्ट ऑफ द रिवर चलती है। तो ज़्यादा जो डैमेजेस हैं, सर, हमारे वो बेसिकली यहाँ पे एक जगह है, सर, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसके ज़रा बेहतर नज़र आ रहा है। तो ये हमारे, सर, फतेहपुर से लेके तो बहरीन तक, सर, मल्टीपल जगहों पे 4 से 5 ब्रिज डैमेज हुए, सर। एक कंदील ब्रिज डैमेज हुआ जो कि लेटरल है, सर, इस तरह, और मदियन से जो है, सर, 2 ब्रिज इधर डैमेज हो गए थे, सर। बहरीन वाला जो ब्रिज था, सर, वो सबमर्ज था, और यहाँ पे, सर, 3-4 जगहों के ऊपर जो रोड था, सर, 200 से 300 मीटर वो वॉश अवे हो चुका हुआ था। इसके बाद, सर, जो बड़ा अभी यहाँ तक, सर, NHA ने बड़ा इन्होंने डे एंड नाइट एफर्ट की है, सर, और अप टू बहरीन जो है, सर, टेम्पोरेरीली जो है वो इन्होंने डाइवर्जन बना के बहरीन तक, सर, रोड ओपन हो गया। अभी मेन जो इशू है, सर, वो हमारा बहरीन से कालाम, विच इज़ 32 किलोमीटर सेगमेंट। इसमें, सर, जो 10 साइट्स हैं वो ब्रिजेस जो हैं, सर, वो 8 जो हैं वो बिल्कुल वॉश अवे हो गए हैं। उस पर NHA काम कर रहा था, सर, वो टेम्प्रेरी फिलिंग्स थी और उसके अंदर वो कंक्रीट के पाइप्स रखे हुए थे, तो ऊपर से जो नाले आए हैं, सर, वो उसको मदियन में भी हुआ डैमेज, सर, मदियन में भी हुआ है वो, सर। यहाँ पे 2 ब्रिज डैमेज हुए हैं, लेकिन उसमें, सर, वो बड़े बड़े पिट्स पड़ गए थे, टेम्प्रेरी इन्होंने फिलिंग करके उसको, सर, रिस्टोर कर दिया। ये अभी जो है, सर, चैलेंज वो हमारा है बहरीन टू कालाम। तो इसमें, सर, 10 ब्रिजेस जो हैं वो डैमेज हुए हैं, 2 स्टील ब्रिजेस हैं, वो भी, सर, वाटर के फ्लो की वजह से स्टील ब्रिज जो हैं वो अपनी अबैटमेंट से उतर के नीचे नाले में पड़े हुए हैं। अभी, सर, इनका जो यहाँ पे हमारा NHA जो है, इनके प्लांट जो हैं, सर, बहरीन से भी काम कर रहे हैं, दरमियान मनकियाल से भी चल रहे हैं, सर, ऊपर कलाम से भी चल रहे हैं। कल, सर, आर्मी चीफ आए थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो FWO जो है, सर, वो भी अपना प्लांट लेके आ रहा है, वो भी इनको ऑगमेंट कर रहा है।
और हमारा अपना जो सर कोर इंजीनियर्स है, पेशावर वाली कोर जो है सर, वो भी अपने इंजीनियर्स को भेज रहे हैं। सो वी विल बी वर्किंग इस पे तीनों जो हैं सर, NHA भी काम करेगी, FWO भी काम करेगी और कोऑर्डिनेटेड सर, कोऑर्डिनेटेड। तो इसमें सर वी आर वेरी सर्टेन। इसमें सर बेसिकली हम जो कलाम तक कनेक्टिविटी रिस्टोर करना चाहते हैं, वी वांट टू रिस्टोर इट। मतलब इनका जो टारगेट था सर दैट वाज 15 to 20 डेज। हमें जो कल चीफ ने टारगेट दिया सर वो है कि हम 7 डेज में हमने इसको रिस्टोर करना है। तो उसमें ये है सर, देयर आर 2 चैलेंजेस रोड कनेक्टिविटी को रिस्टोर करना। एक तो ये है सर कि वहाँ पे जो टूरिस्ट स्ट्रैंडेड हैं वो तकरीबन सर 1600 से 1800 थे, उसमें से सर हम 1200 प्लस जो हैं वो हमने इवैक्यूएट कर लिए। हमारे पास सर 6 आर्मी के हेलीकॉप्टर हैं, एक सिविल का है। उधर आज जो हमने सुबह से किए हैं सर तकरीबन हमने 250 के करीब कर लिए हैं सर। अभी आप उनसे कुछ से मिलेंगे, काफी है वहाँ पर अभी जो जिनको इवैक्यूएट सर 600-700 हैं सर, 600-700 हैं। उसके अलावा जो दूसरा चैलेंज है सर वो ये कलाम 600-700 कितने सर, ये इंशाल्लाह ये कल तक आई एम श्योर कि सर बाय लास्ट फ्लाइट 100 या 200 रह जाएंगे। एंड बाय डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों जो है सर हम उनको 100% इवैक्यूएट कर पाएंगे। सर 6 हेली आर्मी के सर, 6 आर्मी के हेलीज हैं और 1 सिविल का हेली, 7 हेलीज हैं सर हमारे पास। ऑल गोइंग टू कलाम एंड पैकिंग, ऑल गोइंग टू कलाम। उससे पहले सर कुमराट में भी 500-600 फंसे हुए थे, वो निकला है, तो वो निकल आए हैं सर। इसमें अभी सिर्फ जो है सर 80 to 90 रह गए जो सारे यूथ हैं, मतलब दे आर ऑल यंग। उनको हमने प्रायोरिटी 2 पे डाला हुआ है सर। तो जो जितनी सर हमारी प्रायोरिटी है सर, औरतें, बच्चे, एल्डरली और जो जिनको सर कोई बीमार है उनको हम इवैक्यूएट करें। इसमें सर जो कलाम में टूरिस्ट के अलावा जो दूसरा बड़ा चैलेंज है ये मतलतान, इसके 2 सर यूनियन काउंसिल हैं। एक कलाम इटसेल्फ है, इसका सर आगे ये मतलतान भी इसका विलेज काउंसिल है। फिर उतरोड़ है सर, उतरोड़ में सर गबरियाल, ये बड़े रिमोट एरियाज हैं सर। तो इनकी सर 50 to 60,000 पॉपुलेशन है। ये हमारा दूसरा चैलेंज है सर और दूसरा फोकस है हमारी जो अभी तो सर हमारा आज तक फोकस था टूरिस्ट को इवैक्यूएट करना, और साथ ही साथ हम इनको भी सर हम इन पे हेली सॉर्टीज, फूड सॉर्टीज इन पे भी लेके जा रहे हैं और मेडिकल कैंप्स भी लेके जा रहे हैं। कल से जो हमारा फोकस है सर वो हमारा इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पे सर इनको फूड सप्लाई भी करेंगे सर। यहाँ पर भी फूड सप्लाई की लोग शिकायत कर रहे थे सर। वो असल में मैं आपको बताता हूँ सर, उसमें सर ये हुआ कि शुरू में 1-2 दिन जो थे हम हेलीपैड के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अच्छा। उसमें सर जो एक लोकल ग्रुप था 100-150 जो यूथ का, वो सारा वो जिस तरह होता है एक टेंडेंसी सर वो ले जाते थे। अभी सर हमने उसको ये किया सर, हमने रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया पिछले 2 दिन से। हम एक गोडाउन में लेके जाते हैं सर, वहाँ से एक प्लान डिस्ट्रीब्यूशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर DPO भी चले गए, हमारे 2-3 ऑफिसर्स हैं सर, CO भी चला गया। तो हम प्लान करते हैं सर, कुछ हम होटल्स को सप्लाई करते हैं सर जिसमें टूरिस्ट हैं, और बाकी जो है सर हम लोकल पॉपुलेशन को विद द रेप्स ऑफ द यूनियन काउंसिल एंड विलेज जो डिफेंस कमेटीज हैं सर उनके साथ मिलकर हम वी आर इंश्योरिंग इट गोज टू एवरी विलेज एंड एवरी यूनियन काउंसिल सर। जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर अभी आपका इंट्रोडक्शन करा देंगे सर, जो वैक्यूज आए हैं सर ये अंदर है। बहरीन और कालाम में फंसे हुए लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जा रही थी। ये बच्चे सर इनका ये होता है सर, व्हेन दे कम हियर तो इनको हम मेडिकल भी देते हैं, और उसके बाद सर जिन लोगों ने निकलना होता है वी गिव देम शटल सर्विस अप टू मिंगोरा, बस सर्विस, एंड दोज हु डू नॉट हैव मनी उनको हम रेंट वगैरह भी कराते हैं। बेटा जर्मन से फॉरेन से। आप जर्मनी से आए? आप जर्मनी से आए? यहाँ पर देखने आए थे? जर्मनी से किधर बेस होंगे ना पाकिस्तान में? जी, जर्मनी से पाकिस्तान में किधर जगह किसी डिस्ट्रिक्ट में? साहिवाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जा रही थी कि किस तरह से मदीन, कालाम और बहरीन के इलाकों से जो सयाह फंसे हुए हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा। वज़ीर आज़म को बताया गया कि अब सिर्फ 700 सयाह फंसे हुए हैं और उन्हें परसों तक इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ लोग खाने की शिकायत कर रहे थे, जिस पर उन्हें बताया गया कि पहले आर्मी की हेली बेस जो है वहाँ से खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, लेकिन अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, जिसके बाद घर घर जाकर बल्कि हर शख्स को खाना तकसीम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि वादी सवात में सैलाब से क्या नुकसानात हुए, कुमराट और कालाम में जो फंसे हुए सयाह हैं उन्हें निकालने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। और अब न्यूज़ हेडलाइंस।